All right. All right. Assalamu alaikum everyone, and good morning to everyone. Plus, last class we discussed about batch processing and real-time processing. What about error handling, beta? Yeah. Have you done? Have you done error handling? Okay, you've done it. Okay, we move on. Loading and management of user, processor management, memory management. I don't think we have done the memory management. मेरी हाँ वाला हाँ नहीं हुआ सही कह रहे हैं. All right, so let's start with the memory management. Now in memory management, what we do is, I mean, this is again is one of the function of the operating system, where you just have to analyze and check how a computer is able to process and manage the memory thing. And when I say this memory term, I refer to what? I refer to RAM. I refer to RAM only. Okay. So when I talk about RAM, again it's a hardware, and this hardware is basically utilized and accessed by whom? By the OS, operating system. So how this operating system is able to manage? Let me just show you the task manager again. As you can see here, memory, how much memory has been consumed by this software, how much memory has been consumed by this software, every detail has been mentioned in this task manager, right? So what exactly you are supposed to do? You just need to understand the function of operating system is to manage the memory as well, not only the processor but also the memory. How much memory needs to be allocated for specific task or program? This is actually done by the operating system itself. Okay, clear? Clear? Plus, we have already discussed the real time processing or not? Have we discussed it? ठीक है. Interrupt handling, yes, it is a processor management. नहीं हुआ? नहीं सर अब हो गया था सर. क्या कह रहा है? हो गया था बेटा, प्रोसेसर मैनेजमेंट हो गया था. यस सर हो गया था. अच्छा, तो बेटा जब हो गया था तो फिर आप मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे. ठीक है. सर मैंने बोला हमने ये कर लिया था, इससे आगे वाला करना है. अच्छा आपने बोला कहाँ तक किया था तो मैंने वो बताया. आज मेमोरी मैनेजमेंट में हम जो है सिर्फ और सिर्फ सॉरी रियल टाइम प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रोवाइड यू द आउटपुट इन नो टाइम, एज इन लाइक इंस्टेंटली इट विल गिव यू द आउटपुट. फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन, interactive games, computer, when you are online games, huh? On websites, interactive websites, live streaming. These are some of the examples of the real time processing where you don't need to wait. You are getting the output then and there. उसी वक्त आउटपुट आ रहा है, उसी वक्त आपको सब चीजें जो है वो मिल रही हैं और नजर आ रही हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ा. ठीक हो गया. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है इंटरप्ट हैंडलिंग. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स को कैसे हैंडल करता है. अच्छा, हाउ अ कंप्यूटर इज एबल टू नो कि भाई इंटरप्ट इज अकर्ड or interrupt has occurred in it, it's just that whenever you take or you grab the attention of the processor, then only you will see कि भाई there is an interrupt. If I press any key from the keyboard, or if I click any option from the mouse, what exactly am I doing?
आई एम सीकिंग द अटेंशन ऑफ द प्रोसेसर, आई एम एक्चुअली इंटरप्टिंग द नॉर्मल प्रोसेस। भाई ये काम चल रहा है, अभी प्रोसेस हो रहा है, मैंने यहाँ बंद कर दिया इसको, तो ये क्या हुआ, इंटरप्ट हुआ ना एक तरह से। तो ऐसी कोई चीज जिसके थ्रू आपने प्रोसेसर को उसकी जो जो अटेंशन है वो सीख करनी है, तो वो आप इंटरप्ट से काउंट करते हैं। कीबोर्ड, हर आईओ डिवाइस का अपना इंटरप्ट हैंडलर होता है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपके ये मॉनिटर हो गया, हर एक के इंटरप्ट के अलग सेपरेट इंटरप्ट हैंडलर्स होते हैं। जैसे माउस का इंटरप्ट हैंडलर सेपरेट होगा, कीबोर्ड का इंटरप्ट हैंडलर सेपरेट होगा, ये माइक है इसका इंटरप्ट हैंडलर अलग होगा, स्पीकर्स का इंटरप्ट हैंडलर अलग, सब हर हार्डवेयर का एक क्या होता है, इंटरप्ट हैंडलर। तो यानी कि वो जब इंटरप्ट करेगा तो वो फिर प्रोसेसर को अपडेट करता है। ये मैंने इंटरप्ट किया, आ गया, वो प्रोसेस हो गया, ठीक है। मैंने की प्रेस कर दी, इंटरप्ट हो गए। मैं माइक के थ्रू बात कर रहा हूँ, तो ये एक इंटरप्शन ही है ना एक तरह से, जिससे उसने अटेंशन सीख की। अच्छा, ये इंटरप्ट हैंडलर और बफर जो है ना, ये डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम, ठीक है। ये मैंने आपको एक समराइज फॉर्म में एक ओवरऑल व्यू दे दिया है। नेक्स्ट टाइम इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, लॉग ऑन, पासवर्ड। हाँ, तो सिक्योरिटी में क्या है कि आपने इस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए एक यूजर ने पासवर्ड एलोकेट किया हुआ है। अब लेट सपोज आपने वो एक और आपका भाई या कोई भी रिलेटिव या कोई और भी XYZ आ जाता है और आपको वो सेम यूज़ करना है उसका कंप्यूटर, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, अलग अकाउंट बना देते हो या एक से ज़्यादा अकाउंट अपने कंप्यूटर पे बनाओगे। जिस तरह इसी सिस्टम में आप देख लें, एक तो एडमिन है और एक स्टूडेंट है। तो एडमिन के पास डिफरेंट राइट्स होंगे, स्टूडेंट के पास डिफरेंट राइट्स हैं। एडमिन डिलीट कर सकता है, स्टूडेंट को आप डिलीट का ऑप्शन ना दें। आगे वो समझ में। तो बेसिकली ये दो चीज़ें जो है ये आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है वहाँ पे चैट पे, अब्दुल्ला। तो सर, सो वेरी एवरी एक्टिविटी वी डू एन एग्जांपल ऑफ इंटरप्ट। सर, हु टू मैनेजमेंट ऑफ यूज़र अकाउंट हो गया, राइट। ये अगर हो गया है तो मैं दोबारा इसको रिवाइज करा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। दूसरा, हाँ, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक तरह से इंटरप्ट ही होता है, आपका इंटरप्शन ही है नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम में। कुछ इंटरप्शन जो होते हैं वो बेसिकली ज़्यादा अटेंटिव, उसको उसको हमें अटेंड करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आपका डिस्क ड्राइव फुल हो जाए, ये इंटरप्ट है। फिर आपके अगर पेपर आप प्रिंट आउट आप ले रहे हो, कहीं पेपर आउट हो जाता है या पेपर आपके एम्प्टी हो जाए, ब्लैंक मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, आउट ऑफ पेपर का जो एक आ जाता है एरर आपका, तो ये भी एक तरह से इंटरप्ट है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो इंटरप्ट में काउंट होती है। नहीं, वो वेटिंग फॉर द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड, तो वो वेट कर रहा होता है कि सॉफ्टवेयर को रिस्पॉन्ड करे। हाँ, वो अलग है, नहीं वो इंटरप्ट नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं आईओ कंट्रोल। आईओ कंट्रोल में ये है कि आपकी जितनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज है सबको जो है बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है हर डिवाइस को। बंद कर दो, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हर डिवाइस को ऑपरेट कर रहा होता है, जिसके थ्रू जो है आप जितनी डिवाइसेज हैं इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी माउस को मैनेज कर रहा हूँ, कीबोर्ड को मैनेज कर रहा हूँ, ये मुझे तो अलाउ कौन कर रहा है, ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ। ये जो इसके अंदर विंडोज़ 10 है या 7 जो भी है, वो अलाउ कर रहा है इसको फंक्शन करने के लिए या इसको परफॉर्म करने के लिए। विदाउट विंडोज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। विदाउट विंडोज़ आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है।
अच्छा दूसरा क्या है, अब आ जाए, ये इन्होंने एग्जांपल दी है डिफरेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, उसमें कोई मल्टी यूज़र होते हैं और सिंगल यूज़र भी होते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये दो तरह की टाइप्स है, सिंगल और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें डिफरेंस क्या है तो बता देता हूँ। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अकेले यूज़ कर रहे होते हो कंप्यूटर को, यानी कि आपने ये सिस्टम यूज़ किया, आपने आप खुद ही इसको यूज़ कर रहे हो, कोई और इसको यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे होते हो, इस सिस्टम को, एक मिनट ज़रा, खैर छोटी छोटी हो जाती है, कोई इशू नहीं है, रहने दो उसको। बहरहाल पॉइंट इज के अब सिंगल यूज़र में हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो और सिंगल अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, वो सबका सब आपका सिंगल यूज़र में आएगा। मल्टी यूज़र में ये आता है कि सारे कनेक्टेड हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करे एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक्सेस करने में, तो उसको फिर हम मल्टी यूज़र कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल होगी आपके लैब के कंप्यूटर्स। लैब में लेट सपोज 20 कंप्यूटर्स हैं आपके पास और वो कनेक्टेड है सर्वर से, तो हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो अलाउ करेगा कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक्सेस कर सकें या यूज़र एक्सेस कर सकें कंप्यूटर्स को, और उसके थ्रू वो सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। यानी कि सर्वर ने इनेबल कर दिया कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को वो एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम। तो इसके अंदर जो है विंडोज़ 10 आपको अलाउ कर देता है मल्टी यूज़र सपोर्ट। ठीक है, मगर इसके प्योर जो है ना मल्टी यूज़र के अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ठीक है, अब उसमें आपका यूनिक्स आता है, लिनक्स आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दो मेन आपके मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉमनली और बहुत ही रिनाउंड है, लिनक्स यूनिक्स। ठीक है, बट आपका ये जो है विंडोज़ वो भी आपको अलाउ करता है। अगर आप लैब में जाएं, लैब में आप देखोगे कि आपके पास सारे विंडोज़ ही के ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें एक कैपेबिलिटी है आपके पास, पोटेंशियल है विंडोज़ के अंदर कि वो आपको मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में सपोर्ट कर लेता है। ठीक है, मगर ये प्योर मल्टी यूज़र आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो यूनिक्स लिनक्स वगैरह जो है ना, लिनक्स खास तौर पे ज़्यादा जो है ऑथेंटिक पावरफुल है मल्टी यूज़र्स के साथ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इन्होंने फिर आगे कुछ डिस्कस किया है रोम के बारे में। अच्छा रोम क्या चीज़ है ये बाद में हम और डीपली उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि रोम इटसेल्फ क्या चीज़ है। रोम इज ओनली अ मेमोरी विच इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। रोम चिप जो है ये एक चिप फॉर्मेट है, चिपसेट है जो आपके मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड होती है, और उसका जो डाटा होता है वो परमानेंट होता है। अच्छा उसमें किस टाइप का डाटा होता है, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जैसे हो गई, फॉर एग्जांपल ये कोर टू डीओ है लेट सपोज, प्रोसेसर कौन से उसका है, स्पीड क्या है उसकी, ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये बेसिकली आपके रोम चिप में जाके स्टोर होगी, और ये परमानेंट होती है, ये चेंज नहीं होती, ओवर लिमिटेड होती है। कुछ रोम चिप्स के अंदर बूटेबल फाइल होती हैं कि सिस्टम बूट कर ले उससे। अच्छा कुछ अब आप एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर जैसे सिस्टम ऑन करें और शुरू में अगर आप F1 F2 दबा दें, या डिपेंड करता है कोई डिलीट दबा दें, कोई बहुत से, हर एक का एक अपना अपना एक सेटअप है, एक सेटअप आ जाता है ब्लू कलर की स्क्रीन का, उसको कहते हैं बायोस। बायोस का जो सेटअप है अगर आप उसमें जाएंगे तो बायोस के सेटअप में आप व्यू करोगे कि काफ़ी डिफरेंट आपको जो है वो मिलेंगे। हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो, बैठो। तो फैज़ान उधर,
तो इसमें जो है हमारे पास बायोस में जैसे सिस्टम की डेट, सिस्टम का टाइम, सिस्टम का पासवर्ड, वो भी आप सेट कर सकते हैं बायोस के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा आप अगर कोई पेरिफेरल डिवाइसेस आपने अटैच किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन, हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन, अगर सीडी कनेक्टेड है आपके सिस्टम से या नहीं, जो भी है ये भी इंफॉर्मेशन, मतलब जितनी पेरिफेरल डिवाइसेस आपकी अटैच है। क्या अभी लगो, ठीक है। तो ये पेरिफेरल जितनी डिवाइसेस हैं उन सब की इंफॉर्मेशन जो है ये आप सब इसमें स्टोर होती है। कितने आपकी जीबी की हार्ड डिस्क है, क्या है, क्या उसमें रैम कितनी है आपकी, ये सब बायोस में। आप बायोस में कभी जाइएगा, मगर मेक श्योर उसमें कोई चेंज नहीं करना, कोई आपने उसकी सेटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना, अदरवाइज वो फिर इफेक्ट पूरे सिस्टम पे होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं बायोस को किस काम के लिए? बूटिंग सीक्वेंस के लिए। अच्छा, बाय डिफॉल्ट सिस्टम कहाँ से बूट करता है? बिल्कुल सही है, हार्ड ड्राइव से। बिल्कुल सही है, हमारा सिस्टम जो बूट करता है इनिशियली हार्ड ड्राइव से बूट करता है। बट लेट सपोज अगर आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है और आपको दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी पड़ रही है, तो उस केस में क्या करोगे आप? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीडी के थ्रू इंस्टॉल करोगे या तो आप यूएसबी के थ्रू करोगे। दोनों केसेस में आपको बूटिंग सीक्वेंस चेंज करना है, यानी कि पहले हार्ड डिस्क था, अब आपको चेंज करना है या तो यूएसबी या तो डीवीडी, सीडी या डीवीडी, जो भी रोम। अब ये कहाँ से आप चेंज करोगे? ये आप चेंज करोगे बायोस से। दोबारा समझाया तो कर लिया ये आपने, पहले कर लो पहले। ये बायोस को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आज का टॉपिक हम बायोस तक ही रखेंगे, उसके बाद अब आप नोट्स अपने स्टार्ट करें। ये काम कर लें ज़रा, शाबाश, जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया, चले। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको। बायोस बेसिकली क्या चीज़ है? एक चिप सेट है, एक चिप है जो रोम टाइप की है। ठीक है, रोम क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी में हम कंसिडर करते हैं इसको, और ये चिप फॉर्मेट में होती है। ठीक है, अब ये मेमोरी चिप जो है ये बेसिकली आपके ये मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है, प्लेस होती है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो लिमिटेड हो और जो चेंज ना हो, उसको जो है ना हम यहाँ इसमें स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, वेंडर कौन है इस सिस्टम का? वेंडर कौन है? मैन्युफैक्चरर कौन है? प्रोसेसर कितने है उसका है, पावर का? ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना ये इसमें स्टोर होती है। फिर कुछ रोम के अंदर बूटेबल फाइल होती हैं जो सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं, वो स्टोर होती हैं। इसके अलावा जो बायोस है ना वो भी स्टोर होता है इसमें। तो बायोस क्या चीज़ है? आप सिस्टम जब बूट करते हो तो वो अगर आप डिलीट की दबा दें, F1 दबा दें या कुछ, हर एक का अपना अपना होता है, वहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर आप एस्केप की दबाएं ना तो वो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि प्लीज प्रेस F2 टू एंटर सेटअप, राइट? प्रेस F12 टू एंटर सेटअप, हर एक अलग है। तो वो आपने चेक करना होगा कि आपका बायोस सेटअप के लिए कौन सी फंक्शनल की है। अब यहाँ पे 12 कीज हैं, आपको पता है ना, फंक्शन कीज 12 है, F1 से लेके F12 तक। इनमें से कोई सी भी, कोई एक फंक्शन की, हर एक का अलग अलग डिफरेंट होता है, वो आप नेट से भी ले सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि भाई ये मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये ब्रांड का, डेल का, इसका जो बायोस है वो उसकी फंक्शन की कौन सी है, तो ये आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, हर एक का डिफरेंट है। तो जैसे आप वो प्रेस करोगे तो आपका एक मेन्यू आ जाएगा अलग से, ब्लैक एंड ब्लू स्क्रीन बैकग्राउंड में,
बायोस सेटअप कहते हैं उसको, लिखा हुआ भी आएगा हेडिंग बायोस सेटअप। वो बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप अगर बूटिंग सीक्वेंस चेंज करना हो वो, या सिस्टम का डेट या टाइम वो, या आपको पेरिफेरल इंफॉर्मेशन देखनी है या सिस्टम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, तो वो आपको बायोस से एक्सेस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब जो है, अब आपने इसके जो है नोट्स अभी बनाए बैठ के और कॉपीज निकाले सब, तो मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करता हूँ। ठीक है, जो ऑनलाइन है वो भी अपना जो है वो काम स्टार्ट करें। क्वेश्चन देख लेता हूँ। अच्छा जी, इसके क्वेश्चन हैं अब्दुल्ला के हैं, सर सो इन द इंटरफेस हेल्पिंग अस इंटरैक्ट और ओएस इन आईओ डिवाइस। क्वेश्चन रिपीट करो बेटा।